Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss a very important topic in current electricity, which is growth or rise and decay or fall of electric charge and electric current in the series CR circuit, that is the circuit containing capacitor and resistor, both are connected in series. This topic is included in the BSc Part 2 Physics honors syllabus of all universities. In paper 4 of BSc Part 2 Physics honors. Suppose a series RC circuit in which a capacitor of capacitance C is connected to a resistor of resistance R in series, and this combination is connected to a battery or cell of EMF, electromotive force capital E, through a switch S. If this switch S is thrown to position A, then the circuit is closed and the current will flow through the circuit in clockwise direction. Let I be the instantaneous value of current at any instant t in the circuit, and Q be the charge on the capacitor, and also therefore, due to flow of current through the capacitor when the circuit is closed, then potential difference will set up across the condenser or capacitor, which opposes the EMF of the cell included or connected in the circuit. So current, let V be the instantaneous value of potential difference between the plates, two parallel plates of the capacitor. Then current flow through the circuit is I equals to E minus V upon R using Ohm's law. Therefore, V equals to E minus V is equal to IR, and therefore V is equal to E minus IR. IR is the potential drop across the resistor. इस सीरीज CR सर्किट में, जिसमें कि एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और उसे एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया है जिसका रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, और इस सर्किट में एक बैटरी जिसका EMF E है उसे भी इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, और एक स्विच भी है. जब स्विच को ए पोजीशन पर थ्रो किया जाता है, ए पोजीशन पर ले जाया जाता है, तो सर्किट क्लोज हो जाता है. क्लोज सर्किट होगा, अभी ओपन सर्किट है, और उसके बाद उसके कारण बैटरी से करंट फ्लो करेगा इस सीरीज CR सर्किट में. तो सपोज किया जाए कि I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, मतलब क्योंकि जब सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और उसके कारण कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप होगा, और वह पोटेंशियल डिफरेंस सेल EMF बैटरी का EMF का अपोज करेगा. क्योंकि EMF जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के क्रॉस, बैक EMF होगा. तो इस प्रकार सर्किट में, CR सर्किट में करंट फ्लो करेगा I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R. E minus V is the effective resistance, effective potential difference of the circuit. So I is equal to E minus V upon R using Ohm's law. Therefore, V potential difference across the plates of the capacitor is V is equal to E minus IR,
and IR is the potential drop across this register of resistance R. Now V is equal to Q by C. Potential difference across the capacitor is Q by V is equal to Q by C because V is directly proportional to Q, we know, in a capacitor. So that is Q directly proportional to V, or Q is equal to CV, where C is a constant of proportionality which is called capacitance of the capacitor. So therefore Q is equal to CV, therefore V is equal to potential difference across the plates of the capacitor is Q upon C. So we have in place of V we can write Q upon C is equal to E minus capital I into R, and I is what? I is dQ by dt, because there is rise of current or rise of charge in CR circuit when the circuit is closed. So I is the rate of flow of electric charge through the circuit, that is rate of increase of charge through the circuit. So I is equal to rate of increase of charge dQ by dt. So here we can write, in place of I we can write I is equal to I equals to dQ upon dt, dQ upon dt multiplied by R. So we have Q by C equals to E minus dQ by dt into R. Therefore we have dQ by dt into R, dQ by dt multiplied by R इक्वल्स टू, इस टर्म को माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर को LHS में ले जाते हैं, LHS में करने पर, और Q बाई सी को RHS में करने पर हमें E माइनस क्यू बाई सी. देयरफॉर वी हैव C माइनस क्यू अपॉन सी. C LCM लेने पर RHS में C इंटू E माइनस क्यू अपॉन सी. देयरफॉर वी हैव, अब यहाँ से dt एलिमिनेट कर लिया जाए, और उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद t का वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे, और उसके बाद चार्ज का वैल्यू ड्यूरिंग द ग्रोथ और राइज ऑफ करंट इन LR सर्किट. तो हम अभी ग्रोथ और राइज ऑफ करंट इन RC सर्किट को डिस्कस किया जा रहा है अभी, और इसके बाद डीके ऑफ चार्ज और करंट को भी डिस्कस किया जाएगा. तो अभी ग्रोथ ऑफ करंट, अभी ग्रोथ के लिए एक्सप्रेशन, मतलब ग्रोथ के केस में चार्ज का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, और फिर करंट का वैल्यू ऑब्टेन किया जाएगा. तो dt यहाँ से एलिमिनेट कर लिया जाए तो dt कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू हो जाएगा, dt को न्यूमरेटर में रखा जाए, और जिससे dt को एलिमिनेट करने पर dt इक्वल्स टू CR मल्टीप्लाइड बाई dQ अपॉन C माइनस Q. dt इक्वल टू CR इंटू dQ C माइनस Q, दैट इज CR क्या है, CR टाइम कांस्टेंट है. CR सर्किट का CR जो है C इंटू R, प्रोडक्ट ऑफ CR इज टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट. So we have to integrate CR dQ upon C minus Q. Now integrating this equation, dt is equal to CR into dQ upon C minus Q. After eliminating dt from this equation, that is dQ by dt into R is equal to C minus Q upon C. Suppose it is equation number 1. dt is equal to CR dQ upon C minus Q is equation number 1. On integration, that is integrating both sides. On integration we have integral dt equals to CR कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर कर लिया जाए, dQ अपॉन C माइनस Q, और ये dQ अपॉन C माइनस Q स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dx बाई x के फॉर्म में है. तो अगर C माइनस Q को अगर z पुट किया जाए तो डिफरेंशिएशन करने पर C कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, माइनस dQ इक्वल टू dz. देयरफॉर dz बाई z के फॉर्म में आएगा log z, और z के जगह वैल्यू C माइनस Q, और चूंकि माइनस आ जा रहा है यहाँ पर माइनस dQ, इसलिए माइनस टर्म भी इसमें रहेगा. दैट इज आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट t इक्वल टू, और
लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन टी है, इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, इंटीग्रल ऑफ डी टी इक्वल टू टी सी आर मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस सी माइनस क्यू, और एक माइनस टर्म भी इंटीग्रेशन के बाद, तो माइनस सी आर, टी का वैल्यू क्या हो गया माइनस सी आर, टी का वैल्यू माइनस सी आर लॉग बेस ई सी माइनस क्यू, अब प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन K1। चूंकि डिस्चार्जिंग के केस में भी इंटीग्रेशन का यूज करना होगा तो एक और कांस्टेंट आएगा K2, वहाँ पर सपोज किया जाएगा K2। तो यहाँ पर T इजकल टू इंटीग्रेशन के बाद dt का इंटीग्रेशन T हो गया इजकल टू सी आर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू इजकल टू माइनस लॉग बेस सी माइनस क्यू डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स के फॉर्म में है, और प्लस इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट का भी यूज किया जाता है जो कि K1 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ constant of integration constant which is K1. So by applying the condition initially at t is equal to 0 then charge in the circuit is also 0। स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 है तो कंडेंसर पर कोई चार्ज नहीं था। कंडेंसर पर चार्ज सी आर सर्किट में तब हुआ जब सर्किट को मतलब स्विच को ए पोजीशन पर ले जाया गया, थ्रो किया गया, जिससे कि सर्किट क्लोज हुआ और सर्किट से होकर के करंट बैटरी के हेल्प से आई करंट फ्लो किया, जिसके कारण कैपेसिटर चार्ज होने लगा, और उसके कारण ही ये माने कैपेसिटर के चार्ज होने के कारण ही उसमें कैपेसिटर चूँकि चार्ज हुआ तो इसके कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस भी डेवलप हुआ V इजकल टू क्यू अपॉन सी। सो T इजकल टू वैल्यू कितना आ गया आफ्टर इंटीग्रेशन माइनस सी आर लॉग बेस सी माइनस क्यू प्लस K1। अब चूंकि जब T बराबर, मैं कह रहा था कि जब इनिशियली T बराबर 0 था तब चार्ज मतलब सर्किट में कोई चार्ज नहीं था, चार्ज तब फ्लो किया जब सर्किट को क्लोज किया गया। तो एट T इजकल टू 0 Q इजकल टू 0, तो पुटिंग T इजकल टू 0 एंड T एंड Q इजकल टू 0 इन इक्वेशन 1 we will find the value of integration constant K1 and which is CR log base E into C। So initially applying the condition at T is equal to 0, there is no charge initially in the circuit, so equation 1 becomes, from equation 1 we have T is equal to 0, therefore LHS is 0 minus CR multiplied by log base E CE, capital C capacitance of the capacitor, E is the EMF of the battery, minus Q is the small q is the instantaneous charge, plus K1। सो T के जगह 0 हो गया इक्वेशन 1 में, T के जगह 0 पुट किया गया, Q के जगह भी 0 पुट किया गया, Q इजकल टू ऑल्सो 0, जब T बराबर 0 है इनिशियली तो कोई चार्ज कैपेसिटर पर नहीं है, C माइनस 0 डेट इज C, देयरफॉर K1 इजकल टू, अब साइड चेंज कर ली, इस टर्म ये टर्म निगेटिव है फर्स्ट टर्म तो इसको LHS में ले आएंगे, देयरफॉर K1 इक्वल्स टू CR लॉग बेस E इंटू C। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मालूम हो गया, और इसे सपोज किया जाए इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 2 यहाँ था, इक्वेशन 2 में हमने पुट किया था T इजकल टू 0 Q इजकल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 था dt इजकल टू सी आर इंटू डी क्यू अपॉन सी कैपिटल E माइनस क्यू, जिसे इंटीग्रेट किया गया था। आफ्टर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट T इजकल टू सी आर लॉग बेस ई सी माइनस क्यू प्लस K1, वेयर K1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो K1 का वैल्यू भी पुट कर लिया गया। अब इस K1 के वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे। तो हमें चार्ज का वैल्यू सर्किट में इंस्टेंटेनियस चार्ज का वैल्यू क्यों ऑब्टेन होगा। So putting K1 is equal to CR log base C from equation 3 in equation 2, we get T is equal to minus CR log base C minus Q plus K1 is CR log base C, और
टी इक्वल्स टू सी आर दोनों टर्म में प्रेजेंट है, सी आर कॉमन होगा दोनों टर्म में, सी आर सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म निगेटिव है। सो फर्स्ट टर्म को पहले लिखा जाए ब्रैकेट के अंदर, लॉग बेस सी, फर्स्ट टर्म इज सेकेंड टर्म इज पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज निगेटिव। सो इनसाइड द ब्रैकेट सेकेंड टर्म इज रिटन फर्स्ट and then the second term minus log, first term is log base c CE minus log base c CE minus Q, that is therefore time t is equal to instantaneous time t is equal to CR log m minus log n, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है ब्रैकेट के अंदर का टर्म दोनों टर्म। तो log m बेस ई माइनस लॉग एन, बेस ई इजकल टू लॉग एम बाई एन, दैट इज लॉग बेस ई सी ई अपॉन सी ई माइनस क्यू। ये टी का वैल्यू ऑब्टेन हुआ, टी इजकल टू सी आर लॉग बेस ई सी ई अपॉन सी माइनस क्यू, और वी कैन राइट इट एज, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, वी कैन राइट इट एज टी अपॉन सी आर। अब सी आर को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लाया जाए, टी अपॉन सी आर इजकल टू लॉग बेस ई सी ई अपॉन सी ई माइनस क्यू, और अगर लॉग आर एच एस में लॉग है तो लॉग को अगर हटाते हैं आर एच एस से तो लेफ्ट हैंड साइड में ई एक्सपोनेंशियल पावर में आ जाएगा, और सी ई अपॉन सी ई माइनस क्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर टी अपॉन सी आर। और अगर सी माइनस डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर टी अपॉन सी आर, डैट इज न्यूमरेटर में जाकर ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, और सी अपॉन एल एच एस में सी अपॉन सी माइनस क्यू को का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो सी माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल्स टू, इसका भी ई टू द पावर टी अपॉन सी आर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना ई टू द पावर 1 बाई ई टू द पावर टी सी 1 अपॉन ई टू द पावर टी अपॉन सी आर, दैट इज ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर। नाउ वी हैव इन एल एच एस वी हैव सी माइनस क्यू अपॉन सी, इसे इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि सी अपॉन सी माइनस क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी इसे लिखा जा सकता है एल एच एस को, तो सी अपॉन सी 1 माइनस क्यू अपॉन सी। सो वी कैन राइट हेयर 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर, और यहाँ हमें मालूम करना है क्यू का वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस चार्ज का वैल्यू। तो क्यू के लिए एक्सप्रेशन मालूम करना है, तो इस टर्म को 1 माइनस क्यू अपॉन सी को सेकेंड टर्म माइनस क्यू अपॉन सी को एल एच एस में, इसे आर एच एस में कर दिया जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डैट इज क्यू अपॉन सी इजक्वल टू, और ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर को एल एच एस में लाया जाए तो देयरफॉर वी हैव क्यू अपॉन सी इजक्वल टू क्यू अपॉन सी, और क्यू अपॉन, इसे भी एक इक्वेशन सपोज किया जाए 5 लास्ट इक्वेशन को, और वी हैव फाइनल एक्सप्रेशन अब हम ऑब्टेन करेंगे, क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पर माइनस क्यू बाई सी है, आर एच एस में ले जाने पर प्लस क्यू बाई सी होगा, और राइट हैंड साइड का टर्म ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो आफ्टर टेकिंग द टर्म इन आर एच एस टू एल एच एस वी हैव q upon c equals to 1 minus e exponential minus t upon rc, and c we can write c as c into e, that is q is equal to क्या होता है, q is equal to c भी, therefore e is the maximum value of potential difference of a cell of the battery, so it is q naught। तो c की जगह क्या लिखा जा सकता है, q naught, और q upon q naught equals to 1 minus e to the power 1 minus e to the power minus t upon rc, 1 minus e to the power minus t upon rc, therefore q is equal to putting c into e is equal to maximum value of charge। चूँकि यहाँ
चार्ज का राइज हो रहा है, चार्ज का ग्रोथ हो जा रहा है, तो कुछ समय के बाद चार्ज का स्टेडी वैल्यू ऑब्टेन होगा, मैक्सिमम वैल्यू विच इज क्यू नॉट. सो C into E is equal to C is the capacitance of the capacitor and E is the EMF of the battery. So which is the maximum value of potential? EMF क्या है सेल का? Maximum value of potential difference of the cell is EMF. So चूँकि Q is equal to CV होता है, तो in place of V it is capital E, that is maximum value of potential difference of the cell. So C into E is equal to Q naught, that is maximum value of charge, that is a steady value of charge, constant value. जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो स्टेडी वैल्यू ऑफ चार्ज. देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू चार्ज का इंस्टेंटेनियस चार्ज का किसी टाइम टी पर, टी टाइम के बाद जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा उसके लिए एक्सप्रेशन आ गया इन केस ऑफ ग्रोथ और राइज ऑफ चार्ज के केस में. तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ चार्ज, that is instantaneous value of charge in at any time t in the series CR circuit. That is the circuit containing capacitor and resistor, circuit containing a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R connected in series. So this is the expression for charge, instantaneous value of charge in series LCR circuit. Q is equal to Q naught under bracket 1 minus e to the power minus t upon RC. And term CR is called time constant of CR circuit. What is CR? RC? Time constant. It is time constant of CR circuit. Time constant of CR circuit. अब इस फार्मूला से, इस एक्सप्रेशन से, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है कैपेसिटर पर ड्यूरिंग द ग्रोथ और राइज ऑफ चार्ज और करंट इन आरसी सर्किट. अब रेट ऑफ राइज और ग्रोथ ऑफ चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, जो कि करंट होगा. तो आई इजकल टू, इसे डिफरेंशिएट करना होगा इस इक्वेशन को. क्यू इजकल टू क्यू नॉट 1 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी. इसे डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में. तो आई इजकल टू क्या होगा? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज हमें ऑब्टेन होगा, या रेट ऑफ राइज ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर. तो उसे ऑब्टेन कर लें. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 वी गेट आई, दैट इज रेट ऑफ growth of charge in the series CR circuit. So differentiating equation 6, both sides with respect to time, we have I equals to dq by dt, rate of flow of charge, या rate of increase of charge, rate of rise of charge in CR circuit is dq by dt, which is current, that is instantaneous current. I is equal to LHS को इंटीग्रेट किया, dq by dt is equal to I, और Q नॉट क्योंकि कांस्टेंट है और अंडर ब्रैकेट में 1 भी कांस्टेंट है, तो 1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 होगा. कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा. अब एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, तो x की जगह t बाई आर सी है, दैट इज e टू द पावर t अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाई, अब t बाई आर सी का माइनस t बाई आर सी का करेंगे तो माइनस 1 बाई आर सी होगा. माइनस 1 बाई आर सी, टी बाई आर सी का माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई आर सी. देयरफॉर वी हैव 0 माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस टर्म है, सेकेंड माइनस आर सी है, तो सेकेंड टर्म मतलब चूंकि आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू 1 बाई आर सी, दैट इज वी गेट क्यू नॉट अपॉन आर सी इंटू मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी. एंड दिस इज आई, this is current I in the circuit. Q naught upon RC. RC is the time constant of CR circuit. So Q upon I is equal to Q naught upon RC multiplied by e to the power minus t upon RC. और यही एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज इन द सीरीज CR सर्किट. इस प्रकार हमने ऑब्टेन किया I का वैल्यू, और I का वैल्यू में और e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी को क्या लिखा जा सकता है इस इक्वेशन से, इक्वेशन 5 से 1 माइनस क्यू अपॉन सी, दैट इज 1 माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू नॉट
So in this term, that is instantaneous value of I, that is rise of current in rate of growth of charge in CR circuit is I is equal to Q naught upon RC into e to the power minus t upon RC. तो e to the power minus t upon RCR की जगह क्या लिखा जा सकता है 5 से 1 माइनस Q अपॉन C इज Q नॉट, that is Q naught upon RC multiplied by 1 minus Q upon Q naught, and this is the final expression for current in RC circuit during the charging of rise or growth of current or charge in CR circuit. So I is equal to Q naught upon RC multiplied by 1 minus Q upon Q naught, and RC is called time constant of CR circuit. Now in the second case we have to discuss decay of charge in CR circuit. अब इसके लिए स्विचेस को पोजीशन ए से जब ए पोजीशन में थ्रो किया गया था स्विचेस को, तो सर्किट क्लोज्ड हो गया था, क्लोज सर्किट का केस था। अब ओपन सर्किट के केस में अब स्विच को ए पोजीशन से बी पोजीशन में थ्रो किया जाएगा तो सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट में आ जाएगा। और उस सिचुएशन में ईएमएफ ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द बैटरी, दैट इज द बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट। क्योंकि सर्किट ओपन सर्किट में हो गया इसलिए अब सर्किट ई अब इस सर्किट से डिसकनेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर कैपिटल ई इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव potential difference across the capacitor is V is equal to minus Q by C will equal to potential drop across the resistor R, that is IR। तो माइनस Q by C, क्योंकि E 0 है तो हमारा इक्वेशन पहले क्या था, E माइनस V इज इक्वल टू IR। उस केस में मैंने करंट थ्रू द सर्किट हम ऑब्टेन किए थे I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन IR, तो E माइनस IR इक्वल टू V था। तो अब यहाँ पर चूंकि कैपिटल E 0 है, देयरफॉर V इक्वल्स टू माइनस IR, दैट इज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज Q बाई C। सो वी हैव V इक्वल्स टू Q अपॉन C इक्वल टू माइनस IR। चूँकि अब E का वैल्यू क्या है, सेल चूँकि सर्किट से बाहर हो चुका है, इस सर्किट से CR सर्किट में अब इंक्लूड नहीं है बैटरी जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है, इससे इसका ईएमएफ अब 0 उस इक्वेशन में इनिशियल केस में जब हमने यूज किया था E माइनस आई करंट थ्रू द सर्किट E माइनस V अपॉन आई इजकल टू E माइनस V अपॉन R ओम्स लॉ का यूज करके, तो ईएमएफ का इक्वेशन आया था E माइनस V इजकल टू IR। तो यहाँ E 0 है, देयरफॉर V इजकल टू E माइनस IR था, तो E का वैल्यू उसमें 0 पुट कर देंगे तो V इजकल टू क्या बचेगा, माइनस IR, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस है एट टाइम t। देयरफॉर V इजकल टू Q बाई C इजकल टू माइनस IR, और Q बाई C इक्वल्स टू I इक्वल्स टू DQ बाई DT। अब यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, माइनस DQ बाई DT। चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज का डीके हो रहा है। तो अब चूँकि जब CR सर्किट को ओपन सर्किट में लाया जाएगा, मतलब सेल जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट से, देन कैपेसिटर विच इज इनिशियली चार्ज टू द स्टेडी वैल्यू Q नॉट, पिक वैल्यू चार्ज का होगा जब फुली चार्ज होगा, तो उस चार्ज को थ्रो करेगा रजिस्टर R से होकर के और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो इन दिस केस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रो रजिस्टर R and sends charge that is current through the resistor, and in this case there is decay of charge, यहाँ चार्ज का डीके होगा। देयरफॉर I इजकल टू माइनस DQ बाई DT, माइनस पहले है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ चार्ज डीके कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई R, और यहाँ से फिर अब हम DT का वैल्यू ऑब्टेन करें और फिर इंटीग्रेशन इसका
इंटीग्रेशन इसका करना होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, इन दिस केस इक्वेशन नंबर 6 तक आया था फाइनल इक्वेशन। अब इसे इक्वेशन नंबर 7 इसे दिया जाए तो क्यू वाई सी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, और डी टी इक्वल्स टू, फिर से डी टी एलिमिनेट किया जाए और इसको इसे फिर इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड में, और तब फिर चार्ज का एक्सप्रेशन डी क्यू ऑफ चार्ज के लिए एक्सप्रेशन हमें मालूम होगा। तो डी टी इक्वल टू माइनस आर सी और सी आर इंटू डी क्यू अपॉन क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इसे फिर से दोनों साइड में इंटीग्रेशन का यूज किया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 8 we get integral dt is equal to, integrating both sides of equation 8 we have integral dt in LHS is equal to minus RC, मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का जो प्रोडक्ट है इसे टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट, सो इट इज ए कांस्टेंट। RC इंटीग्रेशन से बाहर होगा, आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज कांस्टेंट dq अपॉन q, और इंटीग्रल ओवर dt इज इक्वल टू t इज इक्वल टू माइनस RC, और डी क्यू बाई क्यू इजकल टू लॉग क्यू बेस ई प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट K2, वेयर K2 इज अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने चार्जिंग ये ग्रोथ ऑफ चार्ज इन CR सर्किट में ऑब्टेन किया था, K1 यूज किया था, और उसका वैल्यू भी ऑब्टेन किया था इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके। यहाँ कंडीशन क्या है, एट टी इजकल टू 0 चार्ज का वैल्यू कितना है, Q0 है। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब है जब डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ तो उसके पहले तक, उसके जस्ट पहले तक कैपेसिटर चार्ज हुआ था और फुली चार्ज हो गया था। तो क्यू का वैल्यू स्टेडी वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू या पिक वैल्यू, पिक चार्ज Q0 अटेन हुआ था। तो इनिशियली एट टी इजकल टू 0 जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q एट टी इजकल टू 0, Q इजकल टू Q0 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और स्टेडी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब उस चार्ज को जब कंडेंसर डिस्चार्ज होगा तो उस सिचुएशन में जो टोटल चार्ज को एक्वायर किया है चार्जिंग के प्रोसेस में, तो उसको थ्रो करेगा सर्किट में, मतलब रेजिस्टर से होकर के। अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो Q इजकल टू Q0 एट टी इजकल टू 0, देयरफॉर वी हैव K2 का वैल्यू LHS में T 0 पुट करेंगे तो Q के बदले Q के जगह पर Q0, देयरफॉर K2 इजकल टू माइनस RC मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस E Q0। चूँकि T का वैल्यू LHS में 0 है तो इस टर्म को माइनस RC इंटू लॉग बेस E Q0 को जब Q के जगह Q0 पुट करके जब T इजकल टू 0 है LHS में लाएंगे तो K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, RC लॉग बेस E Q0। सो इक्वेशन 8 becomes by using T is equal to 0 and Q is equal to Q0, equation 8 becomes K2 equals to RC log Q base log Q0, Q के जगह Q0 हो गया base E, and this is the value of constant integration constant, second integration constant K2 is equal to RC log base E Q0। अब इस वैल्यू को K2 के वैल्यू को इक्वेशन 8 में पुट कर दिया जाए तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन, अब डिस्चार्जिंग के केस में, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज इंस्टेंटेनियस चार्ज Q के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा, और फिर हम रेट ऑफ फॉल और रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज, दैट इज करंट, को हम ऑब्टेन कर सकेंगे। सो पुटिंग यूजिंग K2 is equal to RC log base E Q0 from equation 9 in equation 8, that is using equation 9 in equation 8 we get T equals to minus RC multiplied by log base E Q plus K2 is equal to RC log बेस E Q0, और इसमें भी RC दोनों टर्म में दोनों टर्म में प्रेजेंट है। तो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। तो अब ब्रैकेट के बाहर RC को लिया जाए, RC इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को पहले लिखा जाए और
सेकेंड टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर और फर्स्ट टर्म को चूंकि निगेटिव है तो बाद में, और t इक्वल्स टू आर सी कॉमन हो गया, लॉग बेस ई क्यू नॉट माइनस लॉग बेस ई क्यू, देयरफॉर t इक्वल टू टाइम t इक्वल टू we have t इक्वल टू आर सी लॉग बेस ई क्यू नॉट अपॉन क्यू, ये टाइम का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया। मतलब इक्वेशन 8 में इक्वेशन 9 से K2 का वैल्यू पुट करने पर t का वैल्यू आ गया कितना, CR और RC लॉग बेस E क्यू नॉट अपॉन क्यू। देयरफॉर लॉग बेस ई क्यू नॉट अपॉन क्यू को लिखा जा सकता है t अपॉन आर सी। वी कैन राइट हेयर लॉग बेस और लॉग बेस ई क्यू नॉट अपॉन क्यू इक्वल्स टू t अपॉन कैपिटल R इंटू सी। तो लॉग बेस ई क्यू नॉट अपॉन क्यू का वैल्यू मालूम हो गया। देयरफॉर क्यू नॉट अपॉन क्यू क्या कितना हो जाएगा, e टू द पावर t अपॉन आर सी, क्योंकि हमें चार्ज का वैल्यू ऑब्टेन करना है, इंस्टेंटेनियस चार्ज ड्यूरिंग द discharging of the capacitor, that is decay of charge through the capacitor। तो Q का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, log बेस ई क्यू नॉट अपॉन क्यू इजकल टू टी अपॉन आर सी। देयरफॉर क्यू नॉट अपॉन क्यू वी कैन राइट इट एज एक्सपोनेंशियल। अब log को हटाएंगे LHS से तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, e टू द पावर। देयरफॉर वी हैव क्यू नॉट अपॉन क्यू, Q naught upon Q, therefore we have Q naught upon Q equals to e to the power T upon RC। और हमें चूंकि Q का वैल्यू ऑब्टेन करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए Q नॉट अपॉन Q का, तो Q अपॉन Q नॉट, तो RHS का भी रेसिप्रोकल लेना होगा 1 अपॉन e टू द पावर T अपॉन RC, दैट इज e टू द पावर माइनस T अपॉन RC। देयरफॉर Q इजकल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस T अपॉन RC। And this is the expression for instantaneous value of charge during the decay of charge in RC circuit। अब रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज भी हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं इस वैल्यू से। तो इसके लिए डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 10 विच इज द एक्सप्रेशन फॉर डिके ऑफ चार्ज, दैट इज this is the expression for decay of charge, means instantaneous value of charge at any time t during the discharging of the capacitor through resistor R। So rate of decay of electric charge कितना हो जाएगा, I equals to d। रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज क्या हो गया, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज क्या हो गया, करंट हो गया, तो I इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज क्यू नॉट मल्टीप्लाइड, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है और ई का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो उतना ही ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और फिर माइनस टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन आर सी, डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी अपॉन आर सी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा -1 बाई आर सी, -1 बाई आर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड आर सी इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सीरीज, time constant of the CR circuit। therefore we have Q naught I is equal to Q naught minus Q naught upon RC multiplied by e to the power minus T upon RC। और e to the power T upon RC का वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वेशन 10 से, Q upon Q naught। तो वी कैन राइट हेयर इन प्लेस ऑफ e to the power minus T upon RC वी कैन राइट Q upon Q naught, यहाँ लिखा जा सकता है Q upon Q naught। therefore we get minus Q naught upon RC, and in place of e to the power minus T by RC we can write Q upon Q naught from equation 10, जो कि फाइनल एक्सप्रेशन था डीके ऑफ चार्ज इन सीरीज CR सर्किट, Q इजकल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर T अपॉन RC। राइज के केस में क्या था, या ग्रोथ ऑफ चार्ज के केस में क्या था, Q इजकल टू Q नॉट 1 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर T अपॉन RC था, और यहाँ केवल Q इजकल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर T अपॉन RC।
RC is the time constant of CR circuit. In place of e to the power minus t RC, we can write from equation 10 Q upon Q naught. Q upon Q naught. Q naught से Q naught cancel हो जाएगा. Therefore, we have I is equal to that is rate of decay of charge in CR circuit is minus क्या बचा? We left with minus Q upon RC in RHS. So I is equal to minus Q upon RC. RC is the time constant of CR circuit. So this is the final result. This is equation number 11. अब इसका प्लॉट चार्जिंग ग्रोथ दैट इज राइज और डीके ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी. टाइम मतलब चार्ज का टाइम के साथ वेरिएशन कैसे इंक्रीज करेगा और कैसे डिक्रीज करेगा डीके के केस में, और इंक्रीज करेगा चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज करेगा ग्रोथ के केस में. सो ड्रॉ वी कैन प्लॉट चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर चार्जिंग that is rise, growth and decay of charge through series CR circuit. CR means the circuit containing capacitor and resistor connected in series. For it, let the charge Q in the circuit is taken along y axis, positive y axis, and time along positive x-axis. Time along positive x-axis. This is time along positive x-axis. Time t और चार्ज हो गया y-axis के लॉन्ग. चार्जिंग के केस में t इक्वल टू 0 है टाइम, यहाँ 0 है, t इक्वल टू 0 और चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम होगा. यहाँ पर सपोज किया जाए चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम है. तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर दैट इज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चार्ज थ्रू growth of charge in the capacitor through the resistor that is in series LCR circuit, we obtain a curve that is parabolic curve, convex shape का. और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज टाइम के साथ जैसे बढ़ेगा चार्ज भी बढ़ेगा और चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटर आरसी सर्किट में कैपेसिटर चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, जो कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो वह मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, जो कि क्या है Q नॉट है. तो ये कॉन्वेक्स मतलब पाराबोलिक कर्व है कॉन्वेक्स शेप का चार्जिंग के केस में, जो कि टाइम के साथ चार्ज के इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है. एंड ड्यूरिंग फॉल ऑफ द डीके ऑफ चार्ज थ्रू द ड्यूरिंग डीके ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर व्हेन द सर्किट इज when the cell of EMF capital E is disconnected from the circuit after throwing the switch to the other position B. It is the case of open circuit. So the capacitor which was initially charged to the steady value maximum value Q naught, अब उसी चार्ज को कैपेसिटर क्या करेगा डिस्चार्ज करेगा. तो अब करंट अब क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू से डीके के केस में डीके ऑफ चार्ज के केस में अब मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट से चार्ज सर्किट में ये कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज होगा, मतलब टाइम के साथ चार्ज घटेगा. तो अब फिर से एक कर्व होगा जो कि कॉन्केव नेचर का होगा और फिर जा कर के अंत में कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा टी टाइम के बाद आफ्टर ए पार्टिकुलर टाइम. इसलिए इसका यह ग्राफ एक और कर्व होगा जो कि कॉन्केव कर्व है, जबकि चार्जिंग के केस में कैसा है कॉन्वेक्स कर्व है. तो इस ढंग से इस मतलब डिस्चार्जिंग के केस में मैक्सिमम वैल्यू Q जो चार्ज एक्वायर किया है ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, तो उस चार्ज को डिस्चार्ज करेगा तो टाइम के साथ चार्ज डिक्रीज करेगा. तो इस कर्व का स्लोप निगेटिव होगा, जबकि चार्जिंग के केस में जो कर्व है कॉन्वेक्स जो कि पैराबोलिक कर्व है दोनों, लेकिन यहाँ कॉन्वेक्स नेचर का है. और डिस्चार्जिंग के केस में माने चार्जिंग केस में मतलब ग्रोथ ऑफ चार्ज के केस में ये कॉन्वेक्स नेचर का है. कॉन्वेक्स मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, जबकि डीके ऑफ चार्ज के केस में इसका स्लोप इस कर्व का स्लोप पैराबोलिक कर्व का स्लोप निगेटिव है.
तो ये प्लॉट हो गया. दिस रिप्रेजेंट्स द प्लॉट ऑफ चार्ज, दैट इज वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज और करंट इन CR circuit. This plot is represented this plot, that is charge time variation, मतलब charge time plot during growth and decay of charge in CR circuit, उसे it is represented in figure 2. अब इस प्लॉट के साथ ही मतलब चार्जिंग ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज को टाइम के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लॉट है, इसके साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड दिस टॉपिक सीरीज RC सर्किट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BSc Part 2 फिजिक्स ऑनर्स examination papers of different universities. Thank you very much.